we will go to your particular sectors which you have done, right? We will try to identify this share and we will try to see why these shares were moving in this particular range. So first was my own exercise, and that was Relaxo. Let me see this Relaxo. See, as we saw, Relaxo was moving, was able to move its sales, was able to move its profits. Sales and profits both were moving. And let us identify what happened in charts. So let me open here Relaxo. So for example, if I want to know, I have not seen any fundamental. See here, Relaxo you are seeing only since 2011. This is NSE chart. What I will do, I will write down again Relaxo. Relaxo, BSE. So see in BSE you are able to see its old chart, right? I was able to understand that my Relaxo was moving in range, alt edge. I did this, right? Thick line. Okay, this is thick line, right? So my Relaxo was moving in the range. Here what you see is their effect, not actual price. In chart you see X bonus and split price. So in real term, the price was not 126, right? This price has been adjusted after bonus and split. But we can understand that my Relaxo was moving in the range of 126. Then what happened? It gave a breakout. After the breakout from 6, it went in a new range. So my stock have been upgraded from 1 to 6 to now 11 to 23. Tell me where I should buy every time during this lower channel. During this lower channel, can you see this channel? Again, it gave a breakout. Now, see, you should expect in advance this type of breakout because it now, friends, please admit me to just talk once with my mummy. Just a minute, excuse me, yeah, because frequent calls. हाँ मम्मी, बेटा अभी मैं मीटिंग में हूँ और मैं आके ये आपका सब जो देखना है वो देख लूंगा अभी, राइट? मैं लेट हो गया था तो मैं ऑफिस पे ही बैठा हूँ, है ना? तो मेरे को 7:30-8 तो कम से कम बच जाएगा, राइट? लॉकडाउन 9 बजे से है, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट? मैं आके देख लूंगा, अभी मेरा मीटिंग चल रहा है। तुमने व्हाट्सएप पे किया तो मेरा फोन आ गया, गलती होगी ना? हाँ बेटा, चलो घर आके बात करते हैं। ओके, तो ये तो मम्मी नहीं थी, मेरी बेटी थी। चलिए, लॉकडाउन 10 बजे तक है, टेंशन नहीं है। लॉकडाउन 10 बजे तक है ना? अरे यार चिंता में फंस गया मैं तो ऑफिस पे। घर जा रहा था लेकिन गाड़ी ट्रैफिक में थी, so I thought that I will not able to reach home before 6:30, so I return back to office. Okay. Yeah. Continue. Right. So the range is 11 to 23. So you should expect in advance that your share is going to give breakout. See, बहुत से लोग क्या करते पता है? They will wait for this breakout. No, I will buy only when this breakout come. अरे Relaxo, if Relaxo will not give breakout, then who will give breakout? This is leader of your sector. So every time what I do particularly, I buy near this channel and I expect that breakout is going to come. So this breakout, many people will buy 23. We should buy near 12. Those people who have learned only a technical analysis will never buy stock here. But you know that this is strongest among this company. Today or tomorrow you are going to see breakout. After 23, your stock have rallied till 44. See, every time it is giving good rally. See, post 23, this was trader remorse. Again, we saw a good rally from 24 to 300. So, paisa idhar 10 guna ban gaya. I was very happy. Again, it entered into a long, boring period. 180 to 300. So, see,
Actually, you know, friend, I always pray for this type of corrections. I don't want rally in my stock. Why? Because see, today also I am earning. So what I want to do, I want to accumulate this type of stocks every time during fall. So whenever this type of correction mode will be there, I will either do SIP or will invest lump sum here, right? Again, a good rally. This breakout was expected, and right now your stock have again entered in a correction mode. So those people who are doing SIP should continue SIP, and those people who want to buy frequent can add whenever it comes near this 500 price, right? So this is a simple chart. See, many people have 1000 type of indicator in this chart. We have no indicator. Have I put RSI? That is the indicator. Have I put stochastic oscillator? Have I put here MACD? These all are complicated names, which even I have used for 10 years. But today I am again at simplest form of the chart. Simplest form means try to understand its behavior. Try to accumulate during this type of corrections. No need to make this chart complicated, right? Now, this was Relaxo. As you were knowing fundamental, you have selected Relaxo, but there is one more company in this cell, in this same sector. Let me see that company, and that is Liberty Shoe. Sir, Here is Liberty Shoe. हेलो Yeah. सर, अमोल बात कर रहा हूँ। थोड़ा रिलैक्सो चार्ट से रिलेटेड एक थोड़ा सा डाउट है, पूछ लूं क्या रिलैक्सो में? पूछ लो। देखो, अगर अभी जवाब देने जैसा लगा तो मैं अभी बोल दूंगा, नहीं तो आपको जब उसका सही समय आएगा तब बताऊंगा। कहिए लेकिन आप। हाँ सर, जैसे अभी आपने रिलैक्सो का चार्ट ओपन किए थे ना, जैसे हमने वो लर्निंग वीडियोस देखे, उसमें जैसे पहले सिर्फ कैंडल स्टिक पे ही बताए थे कि जब जैसे वो एक क्या बोलते हो, मतलब रैली नहीं रहती, वो एक कंसोलिडेटेड फेज में चलता है, तब हमने वहां पे खरीदना चाहिए, तब जाके हमें रैली का फायदा मिलेगा। और बाद में फिर आपने जब 50, 100 और 200 EMA का वीडियो डाले थे, तो बोले थे कि जब वो उसके नीचे आएगा 50 EMA के या फिर 100 के या 200 के, तब अकोमुलेट करना चाहिए। तब अभी देखिए रिलैक्सो ने सिर्फ एक बहुत पहले ही दिया था 50 EMA के पास में, उसके बाद कभी दिया ही नहीं। तो वैसे वक्त क्या करना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए 50 EMA तक, या फिर जैसे जस्ट अभी आपने बताया कि उस अकोमुलेशन जोन में आ रहा है तो उस वक्त खरीदना चाहिए? बराबर तरीके का थोड़ा एकदम राइट। नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था आपका। देखो, रिलैक्सो का ग्रोथ कितना था अमोल? व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ रिलैक्सो? 28% CAGR, राइट? सो दिस वाज ह्यूज ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ था, राइट? अब हमने डी ग्रोथ, कभी भी इस कंपनी को लॉस में आते नहीं देखा, राइट? आपकी कंपनी के सिर्फ 2 बार सेल्स घटे हैं, तो जब जब सेल्स घटे हैं, दैट वाज द टाइम योर शेयर वुड बी एंटर्ड इनटू दिस टाइप ऑफ करेक्शन मोड, है ना? ये करेक्शन मोड में आपका शेयर कब आएगा? जब भी सेल्स में गड़बड़ी होती है तब, बराबर है? सेल्स और प्रॉफिट दोनों टूटते हैं जबरदस्त, तब आपके शेयर 50 को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पे रिलैक्सो के केस में हमने बहुत ज्यादा डीग्रोथ कहीं पे भी नहीं देखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका शेयर कभी भी 50 मेमा के नीचे ही नहीं गया। राइट? तो क्या करें? 50 मेमा एक आपका इंडिकेटर है। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि आप बड़ी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाओगे एक बार अगर आप रह गए हो तो। इनिशियल फेज में आपने नहीं लिया, सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग हियर, you are doing just small quantity, you are just accumulating, buying small quantities. Okay, right? See, this was a correction mode, you can see this. We should accumulate. Yes, but see, if your stock will break 50 MEMA, that is very good opportunity. यहाँ पे इतनी बढ़िया opportunity हमें नहीं मिली है। मिली है? नहीं मिली है। अभी क्या करोगे आमोल? करंट स्टेज में रिलैक्सो में क्या करना चाहिए? अभी तो वहाँ पे भी ये कर सकते, कंसोलिडेटेड फेस हुआ तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि रैली में फायदा मिले। करेक्ट। देखो, ये मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा शेयर ऐसा चले,
राइट। हाँ जैसे हर बार वो इस प्रकार से चलता है करेक्शन मोड में। सो व्हाट आई विल डू, यस आई विल ऐड अगेन नियर 500। अब भी तो ऐड करने के ही नहीं। If I want to add, what I will do, I will again add near 500। तब तक क्या होगा पता है अमोल, ये आपका एवरेज का हाँ लाइन ऊपर आता जा रहा है, तो एवरेज की लाइन भी यहीं पे कहीं पे आ जाएगी 500 के करीब पे, ओके राइट। मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का मतलब एवरेज आपकी मूव होती रहती है, ओके राइट। एकदम सिंपल कर दो ना अमोल, तो एक सीधी बात है, करेक्शन आया तो हम एक्टिव, रैली चल रही है इनएक्टिव, रैली में कुछ नहीं कर पाएंगे, करेक्शन आया एक्टिव हो जाओ खरीदने के लिए, राइट अमोल। ओके ओके सर राइट, आपका एज देख के मैं कहूंगा इफ यू आर डूइंग एसआईपी, एसआईपी तो चालू ही कर देने का, एसआईपी में कोई चिंता नहीं, राइट। यस ओके, थैंक यू सर अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला था कि ये सबसे बढ़िया कंपनी है किसमें, फुटवेयर में। अगर मैं मान लीजिए लिबर्टी शूज में काम कर रहा होता, ये लिबर्टी शूज है, क्या लग रहा है आपको लिबर्टी शूज में, ये कितने साल से एक रेंज में है, 2005 से 2020, पिछले 15 साल से आपका शेयर का चाल क्या है। योर शेयर मूव्स इन द रेंज ऑफ 70 to 300, राइट। अब ये शेयर में भी आप 70 पे बाय करोगे तो 300 तक चलेगा, आप खुश हो जाओगे, बट इट डजंट मीन कि हमारे काम की चीज है। दूर रहो, 15-20 साल बाद भी ये ऐसे ही घूमने वाला है, right? Now why यस Liberty has not given breakout, but Relaxo is given breakout due to their fundamentals. Liberty is a loss making company. वो कभी कभी जब अच्छी तेजी आती है they also make profit, फिर वापस खराबी आ गई they start making losses, तो शेयर भी लंबी रेंज में रहता है। So what I will buy, हमें क्या बाय करना चाहिए, रिलैक्स लिबर्टी की रिलैक्सो, रिलैक्स रिलैक्सो। रिलैक्सो या बहुत लोग ये सोचेंगे कि रिलैक्सो तो बहुत चल गया है, मैं भी ये 2010 में सोचता था। सोचो 2010 में मेरे पास चॉइस थी कि मैं नीचे के लेवल पे लिबर्टी लूंगा तो 70 वाला 300 पे तो बेचूंगा, 4 गुना तो हो जाएगा कि नहीं, राइट। हाँ लेकिन यस अगर मैं भूल गया इसको बेचना, देखो ये तो वापस 70 आ गया, अब भाव भी वही आ गया, और सबसे खराब चीज क्या है पता है आपको, लिबर्टी नेवर गेव डिविडेंड बिकॉज इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो मुझे 10 साल का नुकसान ये भी हो गया कि कोई पैसा भी नहीं मिला। इसके अलावा अगर मैं रिलैक्सो में था, अगेन 2010, 2010 किधर था ये, 6 रुपीज, राइट। किधर है अभी, यस 600। देखो पैसा भी 10 गुना हुआ, उसके अलावा जबरदस्त हर साल डिविडेंड मिला, और ये डिविडेंड हर साल बढ़ता गया, बाय बिकॉज दिस कंपनी इज ग्रोइंग कंपनी। तो टेक्निकल चार्ट्स हो या फंडामेंटल, एवरीवेयर यू विल गेट सेम आंसर, एवरीवेयर, राइट। दिस रिलैक्सो गेव ब्रेकआउट इन 2010, but your liberty didn't give breakout in 2020 also। 10 साल होने को आए उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, शायद लिबर्टी 2025 में दे भी दे, बट डोंट गो आफ्टर लैगर्स, ऑलवेज स्टे विथ लीडर्स, लीडर्स के साथ रहो। जो सबसे पहले ब्रेकआउट देता है वो सबसे अच्छा कंपनी होता है, जो सबसे आखिर में ब्रेकआउट देता है वो घटिया कंपनी होती है, राइट। सो दिस वाज माय यस एग्जांपल। अब हम बारी बारी आपके एग्जाम्पल पे चलेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कंपनीज आर डूइंग, राइट। यस ओके, थैंक यू सर या आशीष आपसे शुरुआत करें। यस आशीष, आप हो ना ऑनलाइन। आशीष अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो कर दो।
नहीं तो बाद में आते हैं हम अहमद भाई से। ओके। हाँ यस सर। यस आशीष, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप अभी हाँ। अपने बिजनेस में काम पे हो कि आप लैपटॉप पे ही हो? तो मैं आपको नहीं, प्रेजेंटर लैपटॉप बना दूं। लैपटॉप पे हो? लैपटॉप। हाँ सर। वेरी गुड। तो मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं आशीष, पाएगा आपको चार्ट हाँ बताना? हाँ सर, ओके पाएगा। राइट, चलिए मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। नाउ यू आर प्रेजेंटर। मुझे आशीष बताओ, आपके पास एक कंपनी थी पीवीआर नाम की, राइट? हाँ सर। अब पीवीआर का चार्ट खोल के मुझे समझाओ कि पीवीआर कैसी है और दूसरी ओके। कौन सी कंपनी है पीवीआर के अलावा वो सेक्टर में, याद है आपको? हाँ सर, पीवीआर के अलावा इसमें एक और भी कंपनी थी। आइनॉक्स थी। आइनॉक्स, आइनॉक्स लेजर। और ये कोई आइनॉक्स पीवीआर लेजर। आइनॉक्स के अलावा कोई याद है? हाँ नहीं सर, अभी तो दो ही याद है मेरे को। आइनॉक्स और कोई पीवीआर बात दो ही है। कोई बात नहीं, चलो पीवीआर का चार्ट देख लेते हैं। हाँ सर, राइट, एक देखो मिनट क्या में करो। एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम। आपके नीचे स्क्रीन लिखा हुआ एक बटन होगा, वो स्क्रीन को क्लिक करो। यस। सर एक काम करते हैं, किसी और को ले लीजिए, मैं बाद में एडजस्ट करते हैं सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। राइट। हाँ मेरे सर, में ओके। भी नहीं ना, मेरे में भी नहीं, आप अपने आप ही बताने वाले हो, बराबर है। हाँ ठीक, ठीक है। यस, तो मैं किसी किसी और को कुछ देखता हूँ। यस, हाँ अहमद भाई है क्या ऑनलाइन? यस अहमद भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? मेरे ख्याल से अहमद भाई नहीं है। यस, नहीं है नहीं है नहीं है। ओके। नहीं है, प्रियंका, पे नहीं है। प्रियंका चेक कर लेना अहमद भाई कोई भी मीटिंग में नहीं है तो थोड़ा फिर उनको प्रॉब्लम ना हो रहा हो, है ना? आमोल, यस आमोल, आ जाओ आप। सर आ, आपके पास मारुति था। हिंदी की इंग्लिश क्या बोलूं आमोल में, कंफर्टेबल? कौन सा भी सर, चलो हिंदी भी इंग्लिश चलेंगे। बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आता है बिल्कुल। मेरे ख्याल से इंग्लिश तो मेजोरिटी लोगों को आता होगा, है ना? तो इंग्लिश पे बात करते हैं। You were having Maruti, right? So let us see chart of Maruti. I will make you presenter. Just a minute. आएगा ना अमोल? आप ऑनलाइन हो ना अभी हाँ लैपटॉप पे? सर। ओके, हाँ सर। मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। राइट। शेयर बटन क्लिक करने के बाद विंडो खुलेगी, उसमें आपका स्क्रीन खाली सिलेक्ट कर दोगे, then everybody will be able to view your screen. I am unable to find that option, sir. नहीं हो रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूं, मैं मेरे में चार्ट आपका मारुति का ओपन कर लेता हूं, राइट? हाँ सर, ओके सर। और आप उसमें से समझाने का प्रयास कीजिएगा। चलो, दिस इज मारुति। ओके, so this is the chart of Maruti, right? Amol, Yes. Maruti is best company in cars and utility vehicle, or some other company is best? No, Maruti also is the best. Or Compared to Mahindra and Tata, Maruti is the okay, best right. in terms So of you are sales also and profits also. right. How can you say considering fundamental or technical? Fundamental, whichever we have already done research on that basis only. Right, right. So we know that Tata Motor is having huge debt and they were making losses since long time. They were not able to catch the booming economy of India, right? Now, Yeah. what you will like to explain about the chart of Maruti? Yeah, sir.
This is the chart of during 2004 to 2007. This is the bear market of 2008. And this was the rally immediately in 2009. So what we were able to learn in 2009 from Maruti? Can you explain this? Now we have to accumulate after 2008. After that small rally in 2009, it again came in consolidated phase. Okay, correct. Amol, see, this was very important. During 2008, whole market has fallen and people were just scared. Even I was scared. I was afraid क्या होगा, मेरा इतना पैसा म्यूचुअल फंड में, इतना शेयर में है, पता नहीं क्या करूंगा. सब म्यूचुअल फंड को कॉपी करके शेयर बाय किया हुआ था, है ना, जो उनके पास है वो हम रखो. सब टूट गया, म्यूचुअल फंड आधा, शेयर आधा. आई वॉज अफ्रेड दैट टाइम में क्या करूंगा. मैंने देखा मारुति ने जबरदस्त कवर हो गया, पर बाजार कवर नहीं हुआ था. So this was the time Nifty gave breakout in 2014, right? But Maruti ने breakout कब दे दिया? In 2009. 9 में, हाँ. तो इसका क्या मतलब था अमोल? मारुति मतलब बिजनेस अच्छा कर रही थी उस समय. वो 8 का फॉल होने के बाद भी उनका बिजनेस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत फास्ट रिकवर हो गया. करेक्ट. सी, दिस वाज हाई ऑफ 2007. बाकी कंपनियां इधर ट्रेड कर रही थी बिकॉज देयर प्रॉफिट वर 50% देन व्हाट वर इन 2007. बट मारुति वाज ट्रेडिंग एट अपर चैनल. व्हाई? बिकॉज देयर प्रॉफिट वर हायर देन व्हाट इट वाज इन 2007. अब ये आपको किधर से पता चलेगा? फंडामेंटल में जो आपने डेटा देखा है उससे. करेक्ट? हाँ. राइट. अब ये कितने समय तक नहीं चला, ये चेक करना हो ना अमोल. व्हाट वी कैन डू, सी हियर यू कैन सी दिस मेजर लेफ्ट साइड पे. ये इसको मैं क्लिक करूंगा, यहां पे रखा और यहां पे रखा. सी इट शोज 57 मंथ. 57 मंथ का मतलब क्या हुआ? कितने साल? ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स, है ना? ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स. 4-5 ईयर्स तक आपका मारुति 1000 से 1700 की रेंज में चलता गया. लोग कहते होंगे मारुति घटिया कंपनी है, चलती ही नहीं है. मैंने तो 4 साल से लिया हुआ है, मेरा शेयर ही नहीं चलता है. और कुछ लोगों ने ये समय बेच दिए होंगे बोर होके. फिर क्या हुआ? 1700 से रैली आ गई, एक बड़ी सी जबरदस्त रैली आ गई, राइट. और ये लोगों को क्या लगा होगा कि लोग हमें उल्लू बना के निकल गए, शेयर बाजार निकल बाजार. राइट. तो स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अमूल? मारुति को आपको किधर एक्यूमुलेट करना था? किधर? हाँ, 9 से 14 के बीच में, जो भी ऐसा कंसोलिडेशन चल रहा था उसके बीच में. वो भी लोअर चैनल पे, या लोअर चैनल पे. देखो 50 मेमा पे मौका दिया, 50 के नीचे आया, 100 मेमा पे भी आपको मौका मिला. अब ऐसे मौके मुश्किल से, याद रखना, 100 मेमा पे लेने के मौके मुश्किल से 10 साल में एक बार मिलते हैं, राइट. एक मौका 2011 में मिला, दूसरा मौका कब मिला? अब 2016 के 2020 अभी मिला चैनल के नीचे. यस, हाँ, है ना. तो 10 साल बाद आपको ये मौके मिले. ऐसे मौके don't expect every 2-3 years you will get this opportunity, right? You will get opportunity to buy at 50 MEMA every 4 or 5 years. तो इसका मतलब ये चार्ट ने हमें क्या सिखाया अमोल? कि माल लेने के मौके हमें 4-5 साल में एक आध बार मिलेंगे. 4-5 साल तक पैसे को इकट्ठा करते जाओ, फिक्स डिपॉजिट में, लिक्विड फंड में. मौका मिलेगा, सीधा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो. बड़े मौके, जबरदस्त अच्छे मौके 10 साल में एक बार मिलेंगे. 2007 में मिले थे, अब ये वापस मिले हैं. यस. तो अमोल ये सीख रहा है शेयर बाजार, ये एक मौका है अमोल, है ना. हाँ, मैंने एक मौका 2008 में गवा दिया था. मैंने ये मौका गवा दिया था. ये मौका, उसके बाद के मौके मैं नहीं गवाता. आई ऑलवेज एक्यूमुलेट ड्यूरिंग फॉल. बराबर अमोल? यस. मैं इसको टाटा मोटर से कंपेयर करूं, मारुति को.
क्या याद रखने का पता हाँ है? मारुति किधर ट्रेड कर रहा है? 50 में वहां पे, राइट? यस अब चेक हाँ करो ऐसे कि इनकी कॉम्पिटिटिव कंपनी किधर ट्रेड कर रही है। देखो मैं इधर टाटा मोटर करता हूं, टाटा मोटर किधर ट्रेड कर रहा है? 200 के भी नीचे। अरे एट द प्राइस ऑफ 2004, मतलब 15 2000 साल पहले किसी ने लाख लगाया, स्टिल टुडे प्राइस इज सेम 1 लाख, है ना? 2008 के बेयर मार्केट के प्राइस आ गए। सो मारुति इज आउट परफॉर्मिंग और टाटा मोटर इज आउट परफॉर्मिंग? मारुति मारुति 50 में टाटा मोटर इधर। देखो सीधा आपको चार्ट से पता चल जाता है हु इज आउट परफॉर्मर, हु इज अंडर परफॉर्मर। अगर आपने फंडामेंटल नहीं भी देखे, स्टिल यू आर अहेड, गॉट इट और नॉट, राइट? यस आपके मारुति ने 2009 में ब्रेकआउट दे दिया था, टाटा मोटर ने कब ब्रेकआउट दिया? 2010 में, 1 साल बाद ब्रेकआउट दिया, राइट? 2007 के भाव के ऊपर कब निकला? 2012 में निकला। तो 12 में निकला है। मारुति से ये 3 साल पीछे चला, इसीलिए मारुति में मंदी आई, उससे पहले ये 2004 वाले भाव पे आ गया। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है अमोल की मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने सोचा क्या क्या हो गया। अरे बरसों से ये सब शेयर आपको सही गाइड करते ही है, हम उसको पहचानते नहीं, बराबर कि नहीं? यस तो दिस वाज योर रिसर्च ऑन दिस ऑटो मारुति। सेक्टर। अरे M&M भी देख लेते हैं, चलो आपका M&M में भी आप ही ने रिसर्च किया है। टाटा से तो बेटर है बट महिंद्रा मारुति एंड से महिंद्रा, इतना यस यस बताओ। मुझे एक आंसर चाहिए, टाटा मोटर इज गुड, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज गुड और मारुति इज गुड। इफ यू वांट टू रैंक इट, हाउ विल यू रैंक? महिंद्रा फर्स्ट सॉरी मारुति फर्स्ट नंबर, सेकंड इज महिंद्रा, थर्ड इज टाटा। कंफर्म? देखो फंडामेंटल भी यही कहता है, चार्ट भी यही कहता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ने 2010 में ब्रेकआउट दिया, टाटा मोटर से पहले, इसीलिए वो टाटा मोटर जितना नहीं टूटा। पर मारुति ने सबसे हाँ पहले ब्रेकआउट दिया, देखो मारुति अभी भी परफॉर्म कर रहा है, राइट? ये इस प्रकार यस से बिहेवियर स्टडी करने के, बराबर कि नहीं? यस ओके। कोई भी आपको, ये जो आपने 3 शेयर देखे अभी, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैं आपको वीबीएल का भी चार्ट बता देता हूं। दिस इज योर वीबीएल, वरुण ब्रेवरेजीज। जितने भी चार्ट देखे, आप इसमें क्या पूछना चाहते हो? योर क्वेरी? क्वेरी तो जब भी वो रिलैक्स होके लिए पूछा था ना, सेम ही क्वेरी थी। मतलब जैसे हमें अकुमुलेट एसआईपी भी करना है, चलो अभी तो आपने राइट। क्लियर कर दिया था, वही एक मेरी क्वेरी थी। क्योंकि मैंने आरती का भी देखा एक चार्ट, आरती में भी कैसा लोअर चैनल आए टच ही नहीं हुआ था काफी लॉन्ग टाइम सही से, बात है। ऑलमोस्ट 7-8 साल से टच ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसे वक्त गेस नहीं कर पा रहा था कि जब वो 50 के पास आएगा तभी लेना है, या फिर कभी कभी वो बराबर है, अकुमुलेशन स्टेज चालू हो जाता है कंसोलिडेटेड, उसके लोअर चैनल राइट, में ले लेना, 50 का वेट नहीं करना। वही एक थोड़ा सा करेक्ट, कंफ्यूजन था, क्योंकि आपने फिर करेक्ट, बता करेक्ट, दी। राइट। Say whenever if your stocks are consistently improving with their sales growth, sales is improving, that means profits are good. So this type of stocks, if they are able to grow their sales consistently every year, then they are even not going to approach to 50 MEMA. But if they are having high debt, for example raw material कुछ ऐसा होता है, high volatile है, company consistently every 3 to 4 year their profits are falling, then such companies are going to come at 100 MEMA, right? There you are going to have opportunity, but again those opportunity says that profits are not consistent. See, in the case of Varun Beverages, I will like to ask you 1 or 2 question. Number 1 यस question, why here you can see highest volume in November? आईपीओ You आया see था volume? उसके वजह से। हाँ बहुत वॉल्यूम है, क्यों इतना वॉल्यूम है? आईपीओ आया था ना उसका, उसी समय पे हो अरे सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट अमोल।
Don't check volume of their first month, because many people are there who are going to buy all the share which are coming in IPO. वो देखेंगे नहीं अच्छा बुरा नहीं, हर IPO का फॉर्म भरने का. So they are going to sell after IPO. You are going to see huge volume on first month. Avoid volume of first month, right? So we are not going to check these volumes. Then what happened? See, your share was consistently moving all the time. What was happening? Bullish engulfing candle. Trader remotes, correction mode, again bullish engulfing, correction mode, good rally. यहां पे क्या हुआ अमोल, समझाओगे? What happened in the month of March? वो तो बहुत बड़ा फॉल हुआ था, तो एक वहां पे हम कुछ शेयर खरीद सकते थे काफी अच्छी क्वांटिटी में, जब वो 480 के आसपास टच भी हुआ था उसी मंथ में. बराबर है, राइट. देखो एक चीज है, जितनी भी बड़ी इसकी बुल कैंडल बनती थी ना, उससे भी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है. इतनी बड़ी कैंडल कभी भी इतिहास में दिख रही है? नहीं. हिस्टोरिकल बिग कैंडल. एक महीने में ये जितना टूटा, 1 2 3 4 मंथ हो गए, ये कवर हुआ है? नहीं. क्यों ऐसा अमोल? इफ दिस स्टॉक इज रियली गुड, it was supposed to cover immediately next month, or at least we have seen 4 months. Till now it should cover this price. जहां से टूटा उतना तो आना था, but why this stock is not able to reach even after 4 months? ये क्या समझाता है आपको अमोल? अभी जैसा करंट मार्केट का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से उनके सेल्स उतने हो नहीं रहे, उसके हिसाब से शायद. देखो अमोल, आप फंडामेंटल वापस देख लेना. देयर वर ह्यूज डेप्स, इनके डेप बहुत हाई है, और ये इतिहास कहता है जब जब सेल्स में मार पड़ती है, वीबीएल टर्न इनटू लॉस मेकिंग कंपनी. ओके. डेप हाई है, मार्जिन बहुत कम है, तो इन्वेस्टर को डर लगता है, ओ माय गॉड कोरोना आया है, सेल्स घट गए, प्लांट नहीं चला, तो क्या होगा? अगेन दिस कंपनी वुड बी लॉस मेकिंग. इसी वजह से बड़े सेल्स आते, ये बड़ा फॉल आया था, और अब तक वो फॉल कवर नहीं हो सका है, राइट? वॉल्यूम का सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है. वॉल्यूम इतने बड़े फॉल में? नहीं. हाँ, तो इसकी वजह से थोड़ी हमें शांति मिलती है कि चलो बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंडों ने, एफआईआई ने सेलिंग नहीं किया, राइट? बट स्टिल ये कैंडल देख के कॉशियस रहने का, रिकवरी में नहीं लेने का, ओनली बाय ड्यूरिंग न्यू फॉल. बराबर है? और प्रिपेयर रहो, डेप बर्डन वाली कंपनी में ऐसे ही बड़े फॉल आएंगे जब भी गिरेगी वो कंपनियां, बिकॉज दे आर हाई वॉलेटाइल लो मार्जिन कंपनीज, राइट अमोल? यस सर. Okay, let me move toward Arpan Kumar. Arpan Kumar, you are right now online? I think Arpan Kumar is not online right now. If you are there, kindly unmute yourself. Munir have raised an query. अच्छा शैला मैडम, इको हो रहा है क्या? My voice is not clear today. Okay. Munir have raised a query that if there is a short history in any chart, there will be no MEMA. What we will do, right? So in this case, VBL, I will be cautious. Huge fall was there. Again, I will not buy in this recovery. ये बड़ा फॉल कहता है अगर मार्केट गिरा तो मैं सीधा ये जो लो बनाया ना, इसके भी नीचे लो बनाऊंगा, तो मैं यहीं पे खरीदूंगा, इससे पहले नहीं. बिकॉज आई नो द रिजल्ट ऑफ वीबीएल, हमें पता ही है ह्यूज ग्रोथ है इन कंपनियों में, राइट? बट स्टिल डेप्ट इज देयर, खराब समय में लॉस हो सकता है कंपनी में. So I think Arpan Kumar is not there. Arun Tyagi ji, are you online right now? Arun Tyagi bhi मेरे हिसाब से शायद he is not there online, or if he is there, kindly unmute. Okay.
Asim Naqvi. Asim, are you there online? Okay. सर आसिम जी ऑनलाइन है लेकिन उनका शायद आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आसिम की कंपनी तो हम देख ले। आसिम, आपकी कंपनी चेक कर लेते हैं। एक है HDFC बैंक, बंधन बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक। देखो, इस पे आप कंटिन्यू करो, उनके पहले मैं बोल दूं 7:15 हो गए हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। See, this is HDFC Bank. Here also you can see there was a huge fall. मतलब कोरोना का जो ये इफेक्ट आया है, देखो जिनमें जबरदस्त बड़ा फॉल आया, स्टिल HDFC बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर दिस फॉल। है ना, हम तो खुश है, वाओ अच्छा रिकवरी आया, बट दिस रिकवरी इज नॉट एज गुड एज फॉल वाज देयर। एक महीने में मारा तो 1200 से 700, तुमको कवर होने में 4 महीना लग गया। स्टिल वी आर ओनली एट 1100। हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। डोंट बी एग्रेसिव ड्यूरिंग रिकवरी, ओनली बाय ड्यूरिंग फॉल। अब ये तो सबसे बढ़िया HDFC बैंक है, यू कैन कंपेयर इट विद अदर बैंक्स। टेल मी, मैं आप लोगों पे कुछ क्वेश्चन थ्रो करना चाहूंगा। आई वांट टू नो विच इज गुड बैंक। आई डोंट नो फंडामेंटल राइट नाउ। HDFC है, इधर है ICICI बैंक। Considering chart, tell me which company is better. Yes, you can write down in comments. Yes, Ashish, 2 minutes. Huh? Let us check it. See, you can see clearly that HDFC Bank is was trading higher to 50 EMA. It didn't fall below this level. ICICI Bank is trading at the level of 2014. This level, ICICI Bank is only not even double to what it was in 2007. So HDFC is better option, right? Now tell me one more thing. Yes, बताइए। HDFC, ICICI और सिटी यूनियन बैंक? Right, absolutely right. See, या जो ज्यादा टूटा, कुछ लोग सोचते हैं the share which has fallen more will rally more. No, the share which has fallen more will be last to move above this level. The share which has fallen less will give the breakout first. Right, friends? Okay. आशीष, कर लो अपने आप को अनम्यूट। यस आशीष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कर दिया अनम्यूट आशीष? हाँ यस सर। ओके आशीष, सो प्रेजेंटर बनाऊं आपको मैं? हाँ सर। ओके, यू आर द प्रेजेंटर। चार्ट हाँ खोल सर, लेते मेरा हैं। पीवीआर था। पीवीआर डाला, ओके हाँ राइट। आशीष, मेरे को कुछ चार्ट हाँ देख के समझाने का प्रयास करोगे? व्हाट यू कैन सी इन दिस पीवीआर? सर, पीवीआर में ऐसा था कि करीबन वो 2006 से स्टार्ट हुआ है, तब से लेके हाँ 2003 तक उसका यानी कि लेवल वो हाई ने उसने ज्यादा लगाया नहीं, यानी कि हाई उसका था 359 का ही हाई था उसका। राइट। हाँ, और उसका जो लो था तो वो अप्रोक्सीमेटली 55 का लो था उसका, यानी कि वो करीबन 6 साल तक एक ही रेंज में चला है।
एक लाइन ड्रॉ कर दो ना वहां पे आशीष, देखो परफेक्ट, जहां आपने अभी कर्सर रखा है ना, ऑल्ट एज करो वहां पे, हाँ हो गया ना आ ऑल्ट गया। एज, गुड। अब नीचे एक ऑल्ट एज, यस, यानी कि ये अभी जूम पूरा करके, हाँ क्या हुआ आशीष? यानी कि ये पूरा 6 साल के दौरान वो एक ही रेंज में चला है, राइट, यानी कि 65 से लेके 359 के ऊपर वो गया ही नहीं है। हाँ, ओके, हाँ तो हाँ, और बाद में जैसे ही उसकी यानी कि रैली का शुरुआत हुआ, हम्म, तभी वो जाके अप्रोक्सीमेटली उसने नया एक वो लेवल बनाया, वो एक 1005 पे उसने ब्रेकआउट पे लेवल बनाया नया एक। करेक्ट, करेक्ट, यानी कि उसको वहां पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली देखे तो 5 साल और लग गए उसको वहां पहुंचने में। 4 साल लग गए बराबर, वहां पे पहुंचने में। 4 साल यानी कि लग, 359 से राइट, उसको 1072 तक पहुंचने में उसको 4 साल और लग गए। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, और अभी अभी करंट का सिचुएशन उसमें देखने जाए तो उसने बहुत बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ा डाउन कैंडल बनाया है उसने, और उसके अंदर उतना इतना ज्यादा बड़ा रिकवरी हो डाउन ही नहीं पा कैंडल, रहा है। बहुत बड़ा डाउन कैंडल है, तो इतना बड़ा डाउन कैंडल कैसे बन गया? क्या इतना बड़ा है? ये एक महीने में आशीष आपके 3 साल हाँ खा गया। 2016 हाँ हाँ वाले लेवल नहीं, 2000, हाँ 2016 के लेवल आ गया, तो एक महीना वर्सेस 4 साल, ऐसा कैसे हो हाँ सकता है? वाई? हाँ, क्योंकि इसमें उसने क्या ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है, और उसके मार्जिन्स भी कम है, पीवीआर के ओके, मार्जिन्स कम है, तो उसकी और वजह से धंधे वो भी ज्यादा बंद ग्रो है नहीं हो पा रहा है। आशीष भी, है ना? देखो बाकी कंपनियों के तो धंधे चालू है, टीसीएस का बिजनेस चालू है, आपके हाँ गोदरेज हाँ कंज्यूमर का धंधा चालू है, पर पीवीआर में आपने पिक्चर देखा 4 महीनों में हाँ, नहीं नहीं, एग्जैक्टली, बेचारों के बड़ा कम है। धंधे डाउन है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली। इफेक्ट ये आएगा। अब ये कब नया ब्रेकआउट देगा वापस? ये 2200 के ऊपर कब निकलेगा आशीष? उसको अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा, क्योंकि जब जब मार्केट स्टार्ट होगा उनका, यानी कि सेल्स चालू हो हम्म, जाएगा उनका, तो फिर भी राइट, वो पहले तो जो अभी लॉस कर रहे थे उसमें से लॉस में, यानी कि उसका एक नया सेल्स का वो हाई बनेगा, तभी करेक्ट, उसके बाद जैसे यानी कि उसका नया सेल्स उसका हाई होगा, ऑल टाइम सेल्स हाई आएगा, तभी उसका रेट भी एक हाई नए पीक लेवल पे पहुंचेगा वो। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड हाँ आशीष। हाई, हाँ हम लोग हायर हाई हायर सेल्स देखेंगे, लाइफ टाइम हाई सेल्स जब होंगे, तब ये कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स बनाएगी, एंड देन दिस कंपनी विल मेक हायर प्राइस। टिल द टाइम we will not see higher sales, it is hard to make higher profit because there are high debts in this type of companies, है ना? There are debt, high debts are high, margin are lesser. If this company would be debt free company, तो कुछ चांसेस थे कि चलो कुछ समय में ये प्रॉफिट हाई कर देगी, पर ये सारी कंपनियों में डेप्ट ज्यादा है, बराबर कि नहीं? तो ह्यूज फॉल यू हैव सीन। हाँ, आशीष, एग्जैक्टली। दो चीज मिसिंग है आपके चार्ट में। वन, वॉल्यूम इज नॉट देयर, तो वॉल्यूम करने का, है ना, एक वॉल्यूम ऐड कर दो आप परमानेंटली। कैसे करोगे ओके वॉल्यूम ऐड? सर, अभी मैं पीछे के 3 वीडियोस मैंने मिस कर दिए है, वो नहीं देखा है मैंने, 3-4 वीडियोस, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो उसकी वॉल्यूम वजह एक से वो ऐड नहीं। कर दो देना। और दूसरी एक चीज, 50 मेमा की लाइन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, वो भी नहीं है, हाँ बराबर हाँ ना? वो, हाँ तो वो एग्जैक्टली। कर देना, वो आपको अच्छा गाइड करेगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आई हैव हाँ हर्ड अ कंपनी, न्यू कंपनी, देयर इज सिने लाइन। Cine Line हाँ is a हाँ very good company and Cine Line is going to overtake PVR। वो PVR से भी अच्छा शेयर है, बहुत टिप चल हाँ। रही है टीवी में, तो जब भी देखो Cine Line आता रहता है। तो बताओ तो मेरे को, इफ आई वांट टू बाय, आई शुड बाय PVR और Cine Line? सर उसका चार्ट, फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, चार्ट एग्जैक्टली देख के कि बोलो कैसे ना। आ रहा है। अभी हाँ हम फंडामेंटल नहीं देख रहे, राइट? लेट हाँ अस चेक हाँ चार्ट। हाँ हाँ, ओके प्लीज टेल मी, कंसीडरिंग चार्ट। ओके, सिन लाइन का दिखा है ना। यस, Cine Line। चार्ट हो या फंडामेंटल हो, हाँ हाँ कहानी एक ही आएगी। मैं हाँ हाँ बरसों पहले जब चार्ट सीखता था ना आशीष, मेरे को लोग बोलते हाँ थे चार्ट हमेशा उल्टे चलते हैं, चार्ट और फंडामेंटल ऑपोजिट डायरेक्शन चलते हैं।
पता नहीं क्या सोच के वो लोग ये बोलते थे, अभी भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ओके, दिस इज सिनेलाइन, सो विच इज गुड, हाँ सिनेलाइन और पीवीआर? सर, देना ऑब्वियसली सिनेलाइन तो पीवीआर, हाँ? ऑब्वियसली पीवीआर, देखो, क्योंकि इसका पीवीआर आशीष कम से कम तेजी में तो रैली करता था, हाँ हाँ ये हाँ तो तेजी में भी मारता था, तो मंदी में तो अभी क्या, इसको तो 10 साल लग जाएंगे नए हाई लगाने में, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये अभी कितना भी 2009 सिंपल है के यार। रेट में चल रहा है। हम्म। तो आशीष, हाँ शेयर तो बाजार सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, सिंपल एकदम। तो भी पता नहीं क्यों मुश्किल कर देते हैं हम लोग। चलो गुड आशीष, मेरे को और एक चीज जाननी है, हाँ देखने दो वो आपका आपका ही था कि नहीं। यस आशीष, मुझे आमरा राजा बैटरी बताओ ना। हाँ हाँ, ये रहा सर, आमरा रहा बैटरी। ओके। इसमें एग्जैक्टली ये हो रहा है कि पहले तो यानी कि ये शेयर अपन देखने जाए तो हम्म 2000 1996 से लेके वो 2011 तक, तो यानी कि वो एक ही रेंज में था, एक ही रेंज में चल रहा है। राइट। हम्म बाद में उसने 2011 से उसने रैली चालू किया है। कितने रुपए से आशीष? हाँ, 100। वो यहाँ पे था 139 से उसने रैली चालू किया, ओके। और तब आके जाके यहाँ पे उसने 139 से आशीष 1200 रुपया, हाँ हाँ यानी 120 से 1200, सोचो तो कितना हुआ ये? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स। निफ्टी ने ब्रेकआउट आशीष 2014 में दिया था, हाँ 2014 हाँ में निफ्टी 2007 के हाई के ऊपर गया। आमरा राजा हाँ हाँ, बैटरी क्यों 2012 में ब्रेकआउट दे दिया होगा? ये क्योंकि तो छोटी उसमें कंपनी है। हाँ, उसमें ऐसा हुआ है कि उसका सेल्स भी हाई हुआ है और उसके प्रॉफिट भी हाई हुए हैं और उसका ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। राइट, तो इसने तो निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया, किया ना, हाँ 10 गुना हो हाँ गया है खाली तीन हाँ चार साल में। अभी ये एग्जैक्टली, करेक्शन मोड में है, हाँ हाँ, तो एसआईपी वालों को क्या करना चाहिए? उसमें जब भी इसमें फॉल आता है तो हम्म हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बराबर आसिफ, ये तो फॉल में ही है, 2016 से तो आमरा राजा फॉल में ही है ना, हाँ हाँ हाँ, तो एसआईपी वाले तो इसको एसआईपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, इसमें अभी जो करंट ट्रेंड जो लिख रहा है वो उसका डाउन दिख हम्म रहा है कि हम्म। कंपेरेटिवली उसको देखने जाए तो यानी कि उसने जो हाई बनाया था उससे तो वो लो में ही चल रहा है। बराबर है। हाँ, राइट। तो उसने जो हाई बना था उससे तो बहुत लो चल रहा है। ओके, कितने टाइम से ये करेक्शन मोड में है? अप्रोक्सीमेटली देखने जाए तो 2016, हाँ 2017 के बाद ये करेक्शन मोड में ही है। राइट, यहाँ से 2017 लेके मतलब 3 साल हो गए, है ना? हाँ एग्जैक्टली 3 साल हो गए। राइट। देखो, जब ये हाँ शेयर को मौका मिला आशीष चलने का, हाँ तो हाँ ये हाँ 2013 से 2016 यानी 3 साल में 10 गुना हो गया। हाँ हाँ नाउ व्हेन दिस शेयर इज फॉलिंग सिंस लास्ट हाँ 4 years, हाँ इट हैज फॉलन ओनली 50%। हाँ हाँ, किसके हाथों में शेयर है, बुल्स की बेयर्स? ये बुल्स के इसको हाथ हम में कह शेयर है। सकते हैं कि बुल के हाथ में है। राइट, हाँ इस प्रकार से देखने का इसको, कि जब इसे हाँ मौका मिला 3 साल में 10 गुना, और जब पूरी हाँ ऑटो इंडस्ट्री मंदी में आ गई, हाँ हाँ राइट, तो आमरा राजा भी मंदी में है, पर ये टूट हाँ हाँ, नहीं रहा है। ये सिर्फ कितना टूटा, 3 साल में ओके खाली आधा। तो इसको ओके, जब वापस मौका मिलेगा, जब अगेन ऑटो इंडस्ट्री रैली में आएगी, तो ये हाँ मौके हाँ का फायदा कैसे उठाएगा पता है? इसकी आदत हाँ क्या है पुरानी, कितना गुना होने हाँ, की? 10 गुना, आदतें नहीं दस, जाती है, हाँ चाहे अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, तो इसको मौका हाँ चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, हम इसको 10 हाँ गुना देखेंगे। राइट, तो ये 10 गुना क्यों हुआ था उस समय? बिकॉज दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी। राइट। हाँ हाँ, मेरे पास बराबर, एक और कंपनी है। अब आमरा राजा तो देखो, मेरे को क्या है,
वो समय पे भी लोग बोलते थे नहीं 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 नहीं, ये तो यार 150-200 वाला शेयर नहीं, कुछ अच्छा बताओ छोटा छोटा। एक कंपनी हाँ थी सुबेक्स नाम की, मेरे पे हाँ इतने कॉल आते थे और फॉरेन से कॉल आते थे सुबेक्स के कि पीयूष भाई ये मैंने लाख शेयर लिए हुए हैं, क्या करूं। वो तेजी में फंसे थे, सोचो मंदी में नहीं। जब हाँ आमरा हाँ। राजा तेजी में था तभी भी वो लोग सुबेक्स में फंसे हुए थे। मेरे को चार्ट बता सकते हो कि सुबेक्स अच्छा कि आमरा राजा बैटरी अच्छा? देखो तो। हाँ। क्या सोच के लोगों ने वो शेयर लिया था? देखो, जब आमरा राजा, सेम सेक्टर, बोथ आर फ्रॉम ऑटो एंसिलरी, when हाँ Amra Raja was doing rally, what was this share doing? हाँ, ये पूरा फॉल के मोड में ही था वो। लोग इसमें एवरेज कर रहे थे आशीष। हाँ हाँ लोग क्या बोलते हैं, 800 से टूट के 200 आया है अब चलेगा, 200 से 100 आया है अब चलेगा। वो एवरेज करते जाते हैं और ऐसे ही लाखों शेयर इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे को बताओ, ये शेयर अभी तो देखो टूट रहा है, उठाए 1-2 लाख क्वांटिटी, क्या कहते हो? 11 नहीं नहीं रुपया है, सर, क्या ले जाएगा? हाँ, नहीं 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 उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी इतना फॉल आ गया है कि वो भी फॉल के मोड में ही है। अभी फॉल आया है समझे? कि बरसों से फॉल नहीं, ही है? ये 2008 के बाद, 2008 के बाद थोड़ा उसका हाई हुआ, बाद में उसके 2010 के बाद ये फॉल के मोड में ही है। राइट आशीष, इसकी आदत क्या पता है? इसको हाँ एक मौका मिला ना टूटने का, 800 हाँ से 40 आ गया। हाँ राइट, हाँ यानी बराबर। इसे मौके की तलाश होती है टूटने की। वेन एवर मार्केट विल फॉल, ये तो हमें निलाएगा। देखो, दूसरा मौका मिला, किधर से किधर आ गया, 80 से 8। इनको मौके चाहिए, दूर रहो। जिंदगी में ये सब चार्ट देखो ही नहीं ऐसी कंपनियों के। राइट, यस ओके सर, बराबर। आशीष, तो यस चलो सर। कल सुबह बाय करते हैं। नहीं 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 कर सकते सर तो। अवॉइड दिस कंपनीज, है ना? ओके, गुड हाँ गुड, वेरी गुड। So now I will move towards next person. विरल हियर। Yes, बोलो विरल, बोलो। सर एक क्वेरी था, ये ओके, ये तो सुडेक्स तो फॉल नहीं, वाटरफॉल जैसा ही हो गया पूरा। सही बात अ, है। ये इसका सर, हमने इसके पहले जो अमरा राजा बैटरीज का देखा, एनी हाउ हाँ, अभी ऑटो सेक्टर जो है वो डाउन ट्रेंड में है, इसलिए ये 4 साल से नीचे चल रहा है। करेक्ट। सिमिलरली मैंने देखा था कि जैसे आइशर मोटर्स का भी ऐसा ही है कि वो 3-4 साल से उसका थोड़ा लो ट्रेंड में चल रहा है, बट इसमें करेक्ट। ये पता कैसे चलेगा कि इसमें कब बाय करना है, बिकॉज अभी तक तो ये फॉलिंग ट्रेंड में ही है। हम्म, बराबर है। देखो, ये 3-4 साल से ऑटो के जो फिगर आ रहे हैं सब खराबी आ रहे हैं, धंधे घटते जा रहे हैं इन लोगों के। फिर भी ये सब कंपनियां, जो लोगों ने इसको 5-10 साल पहले लिया उससे तो बहुत अच्छे प्राइस पे है, तो लोग डूब नहीं गए इनमें, क्योंकि ये सब डेट फ्री कंपनियां थी। पर अगर खराब कंपनी आपके पास होती तो क्या हुआ होता? अब तक तो गई भैंस पानी में। राइट, अब ये सब कंपनियां रिकवर भी पहले होगी। सबसे पहले कौन रिकवर होगा? जिनके फिगर अच्छी आएगी। आपको विरल सबसे पहले कौन इंडिकेट करेगा कि अब ऑटो में रिकवरी आ गई? कौन? मे बी कौन सी बेस्ट इंडिकेटर होगी? ऑटो सेक्ट्रिक, हम्म, ऑटो की मे बी बेस्ट कंपनी होगी जो इंडिकेटर देगी, जैसे मारुति में मे बी पता चल सकता है। बराबर। नहीं, देखो वो तो चार्ट में आएगा, पर ऑटो के फिगर्स आते हैं, सेल्स फिगर। ओके, नहीं नहीं पता है। ये ऑटो के सेल्स फिगर आते हैं, वो लोग पब्लिश करते हैं हर 3 महीने में कि भाई हमारे पिछले 3 महीने में गाड़ियां इतनी बिकी। अभी तक जितनी भी ओके। फिगर आ रही है, फिगर्स आर डिसअपॉइंटिंग, इतनी अच्छी फिगर नहीं है। पर आप वो फिगर को देख के, जैसे ही वो फिगर आती है ना, मूवमेंट चालू हो जाती है शेयर में। वो फिगर जिस दिन ऐसी आई कि जबरदस्त ग्रोथ आया, समझ जाओ शेयर पहले चलेंगे, रिजल्ट बाद में अच्छे आएंगे। राइट, तो वो फिगर को ध्यान में रखना। कौन सी ओके। फिगर? सेल्स फिगर सेल्स ऑफ फिगर। ऑटो सेक्टर। राइट, अब बैटरी होंडा की और फिगर बजाज नहीं ऑटो आएगी। का अच्छा आया है। हाँ, बजाज ऑटो का क्या हुआ? देखो, जो भी वो इंडोनेशिया है या अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पे भी वो माल बेच रहे, वहां पे तो कोरोना इतना आया नहीं था, वो लोग बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं वहां पे। हाँ। राइट,
और हीरो मोटर जो है वो वहां पे धंधा नहीं कर रहा है इतना अच्छा, तो हीरो मोटर के धंधे ज्यादा टूटे इंडिया में, बराबर। इंडिया में तो बजाज के भी धंधे टूटे हैं, पर बाकी कंट्री से उन्होंने धंधा ले लिया, बराबर। राइट। तो हमें ऐसे स्मार्ट प्रमोटर चाहिए जो दूरदर्शी सोच सके, पहले से दे शुड बी डूइंग दिस वर्किंग इन एडवांस, अपने आप को डाइवर्सिफाई करते जाए और आगे बढ़ते जाए, ऐसे प्रमोटर, राइट। ओके, राइट। श्रीनिवास जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Unmuted. Yes, Srinivas. Yeah. Yes, sir. Okay, let me open your companies. आपका कंपनी किधर है? Okay, your company was Britannia. Britannia MGL Coromandel. Let me open chart. तो श्रीनिवास जी के लिए तालियां भी होनी चाहिए. He has taken the part in Super 21 and have done a wonderful work. Very, very good, Srinivas ji. Thank you, Right? sir. Are you online right now on your laptop? Yes, sir. Okay, so can I make you presenter? Yes, sir. Okay, you are the presenter now. Please open the chart of Britannia. Oh, Okay. yes. So, yeah, Srinivas ji, you are on Zee TV, and I want to know where I should buy Britannia. What will say? What you will recommend? Sir, this one minute, sir. This window is. Yeah. Yeah, this is perfect. Britannia chart I can see. But I can't able to see, sir. This small window is opened here. Acha. Okay, okay. See what you can do. आपको ये सबके नाम की विंडो बीच में आ रही है? No, sir. Either actually small go to meeting another window open हो गया है इधर. Okay, तो एक काम करते हैं. It's okay, sir. It's close हो गया. हो गया ना? Good. Sir, Okay. yes, sir. So what you will? Sir, actually. Yes, please. Sir, like Britannia now it is at 3,679. Like Correct. Current price. So Correct. actually I asked the same question after this breakout here. Now Britannia started to doing the rally. So we should wait for the breakout, or we should buy in this rising price now. Right. Because it is more than 50 mm, or we should wait for 50 mm. How many time during last 1 year Britannia gave you chance to buy? Because here it is in consolidation mode only. Right. From 1 year. Since last 2 years, Britannia was in consolidation mode. So we were supposed to do SIP here, or not? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. We should. Right. Britannia gave us good chance. I think this whole phase was almost about 2 years. We got a 2-year chance to accumulate. Right. Even if you want to put lump sum, we got a chance, I think 4-5 months back, near 50 MEMA. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So अब इसने आपको मौका दे दिया. Now we can't expect every time it will give us chance. Right, sir. है कि नहीं? मौका इसने भरपूर दिया है. So now maybe we will not get chance. It is possible. Right कि नहीं? Right, right, sir. Right. So SIP people were supposed to do SIP. Right. Same thing in 2014 to 17. 2014 to 14-17 में आ जाओ तो श्रीनिवास जी. Can you see the same type of system in 2014-17? Yes, sir. Yes, sir. Here it is in consolidation mode.
Yeah. No, after that rally of those consolidation. Yes, sir. Year one rally is there, 14 to 15, up to Yeah. And 15 what of happened year. after that rally? 15 to 17. It was in consolidation phase. Yes, sir. Year another 2 years, it is in consolidation phase. Yeah. So what we were supposed to do there? Here we should have done SIP, and then Yeah. one more rally has come. Correct. So your shares are always they enters after rally into a consolidation phase. And after every consolidation phase, what you are going to see? Rally, sir. Uh, So as per behavior pattern, now Britannia will be going to rally. yeah, Because after 2 definitely. years it has rallied. Now after 2 years it is started rallying now. And it started rallying. तो भगवान को प्रार्थना करो कि Yes, sir. टूटे तो ले सकोगे, पर चल गया तो गया ये तो हाथ से, है ना? Right, sir. Right. Okay. Right. Right. So this is a good company from packaged goods. आपने फंडामेंटल चेक किए. आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू इसका जो 50 मेमा का रेंज आ रहा है वहीं कहीं होगा इसका 50 मेमा इंट्रिंसिक वैल्यू. Yes, sir. I opened that intrinsic. It was around 888. No. This is wrong intrinsic value. गड़बड़ है. One second. See, your EPS is 58. Your EPS last year was 58. So this year it could not be 29. कुछ गलती हो गया. Yes, sir. Right, sir. क्या 29 कैसे आया बताओ तो मेरे को. वहां पे क्लिक करो तो पता चल जाएगा. Okay. You have taken minus F21. So what is? आपने इक्विटी ले लिया. इक्विटी का ग्रोथ ले लिया, है ना? Yes, sir. Yes. Just do G instead of F. It is 2160, sir. Yeah. Yes, sir. Chart and fundamental, everything says same story. Got it? Got it. Okay. So let us return to chart again. And which was your another company while we were researching? That MGL. MGL बताओ तो मेरे को. महानगर गैस. I love this sector. मेरे को ये सेक्टर बहुत पसंद है. What is this chart showing you? Sir, yes. As per my this thing, it is in like consolidation mode. What was before consolidation? Sir, here from 2017 to 2017 only, November, it has rallied. After that, it has fallen up to 2018. Okay. So can you draw a line and tell me what was the good level to buy this MGL, which is lower channel? वाह सर्व श्रीनिवासन जी, you are an analyst. Very good. In upper part, I think this is the best thing. Yeah, very good. Wonderful. So what do you think? Do you need 4 to 5 laptops to understand this thing? I have seen several analysts वो 10 कंप्यूटर सामने होते और फिर कुछ उनको पता चलता है. What do you think? It is that much complicated that you will need 9 to 10 screens? No, I think, sir. But in trading, they may require. But in trading, trading is also simple. You can do like this trading, right? Okay. But we will talk about it later. Right now, only talk on wealth creation. I want one more answer. IGL. See, here you are having half chart, right? Yes, sir. Right. Half chart है ना? 2017 से पहले का पता नहीं है. Compare it with IGL. If in any company you are having half chart, you can see the chart of its peer company.
you will able to know what would have happened if this company was there. Okay. Compare नहीं directly IGL ही लिख दो, सीधे सीधा write down IGL. नीचे, yes, Indraprastha gas. Right. What was before 2017 in Indraprastha gas? Sir, it is low. It is not in rally mode. It is little bit growing. That's all. Srinivas ji, Before little bit. We saw a rally from 100 to 300. 3 गुना 2 साल में. Yes, yes sir, yes sir. है ना, थोड़ा zoom करो तो Right, पूरा sir. चार्ट ला लो, पूरा चार्ट. या अधूर. यस यस. नहीं देखो zoom कैसे करना, स्क्रॉल करो. इन योर माउस जस्ट डू स्क्रॉल. यस यस. आपके पास माउस है ना अभी? या सी नाउ दिस इज रियल चार्ट. Okay. Right. Okay. So IGL is also a good company, right? MGL Right. just अभी listed हुआ. Right. MGL is also good. Yes sir. Okay. Show me the chart of RCF, Rashtriya Chemical and Fertilizer. You have done work on fertilizer sector also during fundamental. ये कंपनी बहुत चल रहा है 2-3 दिन से, क्या बोलते हो? थोड़ा स्क्रॉल करके पूरा चार्ट एक विंडो में ला दो. ना आउटर स्क्रॉल, उल्टा स्क्रॉल. हाँ, ऑपोजिट. यस यस हो रहा है. यस. और this is not a good company sir actually. ओके. आपको क्या कहती है आरसीएफ का चार्ट, क्या सिखाता है? Sir, it is like 10 years back. What was the price? It is the same price nearby. So no need to see fundamental, because if you will see fundamental, it would be making same profit what it was making in 2003. Yes sir. And Right this sir. company was in Nifty 50. Now you understand why today this company is out of Nifty. Yes sir. Because it is not performed. Yes sir. Yeah. Not a Now growing. please compare it with Coromandel. Can you compare it with Coromandel? Yes sir. Yes sir. I will open that charts. Yeah. See, this is not a good sector, right? Where we are seeing consistent growth. But still, yeah, Coromandel. This is Coromandel Engineering. We want Coromandel International. CORO, I think so. COROM. Yes sir. Yes, yes. Tell me, Coromandel and RCF both are in same sector. I think RCF Yes, is good company. What do you say? No sir. Coromandel is the good company. You can see on chart. Fundamental, आपने तो research किया ही था इसका, right? Yes sir. Okay. If I want to buy, what level you can suggest me to buy? एक मौका तो निकल गया, देखो ये कितना समय एक रेंज में रहा, right? Now if I want to buy, what should I do? Sir, we should wait for this 639 to this 575. Correct. So 575 should be a good level, right? Okay. Yes sir. No problem. 575 should be a good level. Will you be able to differentiate wealth creating company and wealth destroyer company? Can you identify now without looking fundamental? Yes sir, definitely sir. Yeah, so that's same, right? Whichever the stock is consistently performing will be the wealth creator sir. Yeah, you can see, right? And this company has given breakout. I think RCF will give breakout after 5 years. Right? Correct sir. After breakout also it is in whatever the original price, it has came near to that. Yeah, correct. Good.
So wonderful, right? And thanks, Srinivasan ji. So perfect, Thank you you, are sir. going perfect, right? We will move towards some more parameters in coming week. But see, the thing which right now you have studied, according to your study, this was perfect thing. Okay? Okay, sir. So, yeah. Now, Thank you, sir. પિયુષભાઈ, हाँ बोलो. M&M માં પણ મને એવું લાગે છે કે એમાં જે બ્રિટાનિયા જેવું એનામાં મુવમેન્ટ આવે લાગે છે. कौन बोलो छो? બોબીભાઈ, સુરત. बॉबी, विमल, हाँ बॉबी भाई, बॉबी भाई. હા, M&M में कहा ना आपने? હા, M&M. હા, M&M. बॉबी भाई गुजराती बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगा. हाँ, ये सॉरी लोग सॉरी अपनी भाषा में बात करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा. सही बात है, सही बात है. हिंदी और इंग्लिश है ना. Okay. ओके सर. See, Mahindra and Mahindra, you can see this chart. It is trading near 50 MEMA and 100 MEMA, right? See, you got Right. a very good chance to buy Mahindra and Mahindra. Even it has fallen below 200 MEMA, રાઈટ. right? But still, Maruti is performing better than Mahindra and Mahindra, right? If you Right. don't have any company, even Mahindra and Mahindra नहीं है, Maruti नहीं है, तो पहला मौका तो मारुति को ही मिलना चाहिए. टूटने में कम टूटता है, चलने में पहले चलता है, રાઈટ. राइट? ओके. ये थैंक तो यू. बढ़िया ही मौका मिला है अपने को, है ना. ऐसा मौका 2008 में मिला था. यही तो चीज हमने अभी डिस्कस किया. राइट. ओके, ओके सर, थैंक यू. ओके. विरल भाई, आपके पास कौन सा कंपनी था? यस, विरल शाह. वोल्टास. वोल्टास सर. राइट. वोल्टास. मुझे क्या आप बता सकोगे वोल्टास में, समझाओगे? हाँ सर, वोल्टास में अगर हम देखते हैं तो इनिशियली इसने पहला ब्रेकआउट जो है वो समवेयर अराउंड 2005 मिड में दिया था पहले. ओके, इधर, राइट, करेक्ट करेक्ट. 2005 मिड में दिया था. वेरी गुड. या 2005 के बाद वो इट हैज रैलीड फॉर सम टाइम एंड देन अगेन वो 3 से 4 साल कंसोलिडेशन फेज में चला गया था 2008 से लेके 2015 तक. यस, राइट. यानी 6 साल तक ये कंसोलिडेशन Yeah. फेज में गया. राइट, राइट. ओके. एंड देन उसके बाद इट हैज ब्रेक्ड आउट इन 2015 या 16 में एंड देन आफ्टर देन इट हैज बीन राइजिंग. ओके. सो राइट नाउ ये रैली मोड में है कि करेक्शन मोड में है? अभी ये करेक्शन मोड में है. एसआईपी का टाइम है कि नहीं है? राइट. राइट. एसआईपी का कोई शक नहीं है इस चीज में कि हमेशा करेक्शन मोड जब जब मिलता है तब तब एसआईपी करते जाओ. राइट. दिस इज वोल्टास. यू कैन कंपेयर दिस कंपनी विथ दिस वन, वेल्थ क्रिएटर. इसमें और उसमें क्या फर्क है, समझाओगे मेरे को? बहुत लोगों को इस साल पता चला कि वीडियो कॉन अच्छा नहीं है. आपको कब से पता था? ये तो सर 2008 से पता था. इसने जिंदगी का पहला ब्रेकआउट इधर दिया था. राइट. जस्ट लाइक वोल्टास. जब इसे टूटने का मौका मिला तो ये 2004 के भी नीचे चला गया. राइट. ये वापस पुरानी रेंज में आ गया. अब वोल्टास में ऐसा नहीं था, देखा आपने? तो आपको उसके बिहेवियर से पता चलता है कि जब इसे मार पड़ती है तो ये कैसा बिहेव करता है, जब इसे मौके मिलते हैं चलने के तब ये कैसा बिहेव करता है. इन कंपनियों को मौके चाहिए टूटने के. पहली बार टूटा 900 से 90. दूसरा मौका इसने नहीं गवाया 250 से 2 रुपया. तो ये तो मौके की तलाश में रहता है. बराबर, सही है. और एक कंपनी है इसके अंदर
बढ़िया कंपनी, एकदम मस्त। आप रिलायंस के शोरूम में जाओगे, आपको मिलेंगे इनके टीवी। क्या कहते हो? टीवी शायद ले सकते हैं सर, शेयर तो नहीं ले सकते। विरल 100% सही बात है आपका। डन। पता चल गया ना वोल्टास और इन सब में डिफरेंस क्या है। यस यस। ये क्यों रेंज बाउंड में है? क्योंकि कमा ही नहीं रहे ये लोग। अब आपको कुछ टिप आएगी जहां से ये कहेंगे ये आपको 90 रुपए ले जाएगा शेयर, तो ये 80-90 आएगा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? ये बार बार 90 से 20, 20 से 90 आता है, राइट। यहाँ से भी 90 आ गया, पर आप भूल गए बेचना, ये वापस 11 रुपये आ जाएगा। तो कहाँ ये मगजमारी में चलने का? ये ना कभी डिविडेंड देगा। व्हाट इज बेस्ट? वोल्टास। सिंपल एकदम, क्लियर एकदम स्टोरी। यस। ओके, आपके पास और कौन सा कंपनी था? क्विकिल एंड सीमेंस। सीमेंस, या। आशीष प्रजापति पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल एंड करेक्शन। वीडियो कॉन में जो देखा आशीष, दैट वाज फॉल। फॉल मतलब वो सब पुराने लो टूट के नीचे चला गया, राइट। और ये जो है दिस इज करेक्शन, ये जो है दिस इज करेक्शन, करेक्शन, राइट। जैसे अभी जो वोल्टास में है ये रिकवरी है, ये रैली नहीं है। पर ये जो थी ये रैली थी, इसे हम रिकवरी नहीं कहेंगे, बराबर है। ओके, विरल आपने फंडामेंटल चेक किए थे वो सेक्टर के, एक वेल्थ डिस्ट्रॉइंग सेक्टर था, सीमेंस वाला सेक्टर। सारी कंपनियों ने पैसा ले गई अपना। मैं दो कंपनी यहाँ पे आपको बताता हूँ, मुझे बताइएगा। वन इज सीमेंस। What can you understand from this Siemens? बताइए, क्या समझ में आया? सीमेंस है सर, एक है ये तो प्रोबेबली ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे आई थिंक वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो काफी नॉट अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो नॉट ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, सही बात है। ऊपर से इफ जब करेक्शन में आता है विरल, तब तक ये लंबा समय करेक्शन मोड में रहता है ना। जब इसे मौका मिला रैली का, इसने बढ़िया रैली नहीं की थी, खाली अपग्रेड हुआ। अब ये रेंज में चल रहा है, तो ये नीचे वाली रेंज में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रॉफिट अच्छे हैं। ये रेंज इसकी है, हम नीचे लेंगे, हमें यहाँ पे बेचने को मिलेगा, राइट। ये सेक्टर में एक है सीमेंस, और इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है भेल। भेल में और सीमेंस में क्या डिफरेंस है? एक जो लेवल पे है वो एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है, और ये दूसरा जो है वो खराब टाइम में, तो इट इज खराब टाइम क्या, पूरे टाइम में फॉल ही हो रहा है। तो अच्छे समय में ये रिकवर होता है, बुरे समय में पुराना लो तोड़ देता है बार बार। जब बाजार चलता है दिस स्टॉक रिकवर, जब बाजार करेक्शन होता है तब ये टूट जाता है। तो सीमेंस इज अ गुड कंपनी इन अ बैड सेक्टर, राइट। पर भेल अभी 1995 के प्राइस पे है। अब भेल टूटा है तो ये रिकवर होगा। ये कहां तक रिकवर हो सकता है? 50 में वापस ये फॉल में आएगा। तो इन सबसे दूर रहो। भेल से तो अच्छा है मैं सीमेंस बाय करूं इसी सेक्टर में। गॉट इट? सही है। तो आज आपने फंडामेंटल नहीं देखे, फिर भी आपको चीजें समझ में आ रही है। यस। ओके, गुड मिरर, थैंक यू। जय किशन जी पूछ रहे हैं हैज ब्रिटानिया गिवन अ ब्रेकआउट? देखो, ब्रिटानिया का अभी इतना क्लियर ब्रेकआउट नहीं है जय किशन जी, राइट। मेरे लिए ब्रिटानिया में ब्रेकआउट की वेट देखना बराबर नहीं था। ये पूरी जगह थी जब हमें ब्रिटानिया को एक्यूमुलेट करने जैसा था। अब ब्रिटानिया अगर इस लेवल के ऊपर रहता है तो हम कहेंगे ब्रेकआउट। वहीं से सेलिंग आया था, देखो वॉल्यूम के साथ, है ना जय किशन जी। अभी वो कॉन्फिडेंस से अभी उसने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो वापस वो हमें लेने को मिल सकता है अच्छे भाव पे। मैं आशा रखूंगा मुझे वापस 3000 के करीब वापस लेने को मिले ब्रिटानिया, तो मैं वापस इसे एक्यूमुलेट करूंगा।
तब तक 50 मेमा भी ऊपर आ जाएगी, राइट? ओके बिफोर यू कंटिन्यू जस्ट मैं टाइम बोल दूं 7:58 हुआ है. राइट. ओके, हम we will now move towards last 2 to 3 contestants only, and we will do little bit fast. Okay, Vel Murugan ji, can you unmute yourself? Let me move toward your chapter. Yeah, Vel Murugan ji. Yes. Yes, Piyush ji. Yes. How are you? Fine, everything? Yeah, thank you so much. Thank you. I am fine. How about you? Fine. Wonderful. Thank you, Really? thank you. Okay. So, can you throw some light on Shri Cement? Sure ji. Okay. Should I make you presenter? Yeah, make it, please. Okay, you are presenter now. Are you able to see the screen, Ji? Yes, we are able to see. Okay. Yeah, actually, Sri Cement, I have taken the monthly chart. Okay. I have drawn more lines because I want to track from the beginning. So I was just, scrolling this. Good, no problem. Yeah, I've taken from 96 the resistance and support area. Good. It was trading between 13 rupees and 72 rupees for at least 10 years, 9 to 10 years. Correct. And after that it has given a breakout 2004 at 2004 and it rallied it till 750 range. 750 range actually. Then it went to a consolidation mode between 1500 to 750. Yeah, more than 50% has fallen in 2008. Yeah, tell me, Ji. Right. It has rallied from 70 to 750. Yes. So Ji, how much yes, rally you have seen that during that time? How many times it has rallied? No, 10 times, more than 10 70 times. to 750. More than 10 times. So we should understand his habit. That whenever he will get the opportunity to rally, means whenever economy will grow good, right? Everything will be good. Then this type of share will rally around 10 times. Correct? These are the habits which we should note down. Okay? Okay, Ji. Sure. Yeah. Then in 2008, it has seen a fall from 1500 to almost 300 range. Okay. And below 100 almost memo, 70%. Yes, Ji. Okay. Yes, Ji. It is like 100 memo. Near 100 memo, it has taken a support, and after that, it went to a consolidation mode where it has given the previous breakout. In 2000 breakout, it has given a breakout. No, from there to 2400, it went into a consolidation mode. After that, it has given a breakout there. Then it rallied till 5000. Okay. Right. 5000. Then again, it went to a consolidation mode here. As you said, we can do the SIP here actually from 5000 to 3400 range. Correct. It has given a very good breakout from there to 10,000. Okay. Then 10,000 to 12,500, it has taken consolidation mode, given a breakout. And one second. Yeah, it has reached this level. Actually, the screen go to 1 second. So if I want to buy now, I want to accumulate some more. Well, I should add some more Shri Cement. When you get when it is fallen near 13,500, near 13,000 or 14,000, it is a very good support because 100 memo is there. Right. Or at least it should come near 17,000, where 50 memo is. Correct. So we can start from Muruganji, I SIP. got a good opportunity to buy just last year. Yeah, Yeah, exactly. last year, just I think 10-12 months back, I have bought it around 13,000.
I have bought this 13%. share even at 700 rupees many years back, but still I have bought one more at 13,000. Why, you know? Because if we will not buy Shri Cement in cement, then what we will buy in cement, right? Okay, okay, So okay. whenever we get this opportunity, we can add. Yeah, sure. Okay. Can you compare this company with Ultratech. Century Textile? Century Textiles. Yes, G. Century Textile was also in the same sector, cement. Now its cement plant has been purchased by Ultratech. Okay. But what about, in chart we will be able to see what was previously before Ultratech, right? So please open Okay. chart of Century Textile. Century Textiles. Okay, G. Century Textiles. Yeah, same. Correct. This is Yes, Century Textile. Yes, G. Can you scroll and show me full chart? Yeah, sure, G. Sure, G. Yeah. This is Century Textile. Now, This is Century when I Textiles. was buying Shri Cement in 2010, Ultratech in 2010, this Century Textile was an attractive company which was trading at only 150 rupees. Okay. So, मेरे दिमाग में भी आया होगा, यार श्री सीमेंट तो बहुत चल गया है, why not buy Century? Yeah, so Tell me actually, what would have happened. yeah, Shri Cement was in a rally mode, continuous rally mode, because it was given consistent growth and sales and profit. Right. We were able to see the fundamentals. When comparing fundamentals, no, it has given a consistent growth. Hence, Correct. it has replied in the charts also. But whereas in Century Textiles, we are seeing whenever it gives some rally mode, it falls into a, not even into the correction mode. It fall like anything. From 500 to it has fallen to 100 rupees. Then again, now it went to 500 plus, came to 200 levels. Right. So Century is looking very big for volatility. a falling opportunity every time. उसको मौका चाहिए गिरने का, है ना? And Okay. Ultratech and Shri Cement are looking for opportunity to rally. Yeah, wealth Right? creator, definitely a wealth creator. Yeah, this is the way. Don't ever get trapped in these bad companies. See what happened now. Century Textile was a very huge debt burden company. So now their cement business has been sold to Ultratech. Ultratech is making profit in the same plant where these people were making losses. Okay. Right. So this is management. Sure. Okay, good. Any other company which you have done fundamental research during your time? Yes, Ultratech, Fine Organics. That is the second company I've taken. Okay. Yeah, please show me. Fine Organics. Yeah. 1 second. I'll just scroll and show. Fine Organic. Monthly chart I have taken. Since it is very short period, I have moved to weekly. Actually, 2000 from 2019 only we have. So I have taken the weekly chart. Correct. Weekly chart from here. From this level, it has given a rally to 1200 levels. Right. In between, it went to a consolidation mode. Then given a breakout, 1500. From 1500, it has broken and moved to 2000 levels. Correct. Finally, it was reached 2500 levels. From there, it has fallen to 1500 levels. Correct. So it's a normal correction mode, right? Yeah, normal correction. Yes. And we are having a good opportunity to buy it at 50 MEMA. This is a good company, a debt-free company. Okay. Can you show it on BSE India, on BSE India website? SG, sure. Yeah, yes, please. Just after the IPO, we saw this company and it was a good company, a debt-free company, growing company. Pre-IPO data shows that this company was growing good, right? And there was no debt. Now, there was one negative point that this is a small company. Please show me fundamentals. Yeah. Annual trend. Yes, G. So see, this is a debt-free company, we can say. Yes, G. They were having good margins. Yeah. Right.
Okay, Yeah, very so good we margin and got, debt-free company. Yes. yeah, pre-IPO data we have seen, that was a good thing. So we thought, let us buy this company with a reasonable quantity. Why reasonable? Because 1,000 crore in this sector is not a big turnover. It is a small Okay. cap company. Okay. Please click on this disclosures. Disclosure, can you see on left tab? Pardon ji? Disclosure. Here you can see now. Yeah. Your left side headers. Oh yeah, disclosure. Yes. Yes. Yeah, disclosures. SAST. SAST. Okay. Ji. Yes. What you saw? It is 1 second. Ji. Holding after transaction. See, SBI mutual fund. Yes, have mutual bought fund, yes, on 4th July. Okay. Ji. Okay. Right. On 4th July, they bought around 42,000 shares. Right. Okay. Ji. Return to chart now. Move to chart. Chart of Fine Organic. Yeah. Now do it daily. Okay. Ji. And let us go to 4th July. Okay. One second. Ji. 4th July. Yes. You will have to. This one. Yeah. 3rd July. And then it was 2000. Sorry. Yeah. Initial period. 2018. Okay. Sorry. Yeah. One This second. company was born immediately after that IPO. Yes. Yes, Ji. July. Okay. July 2018. 2018. Okay. Yeah, here, almost so, here. Please go on 4th July. 4th July. This is 23rd August, right? Yes, Ji. 4th July is the very first beginning, actually. Here. So, what? This one, third condition. Yeah, what can we understand from this? That immediately after the IPO, third day, SBI came and bought around 40,000 shares. Yes, Ji. Yeah. Pre-IPO data, we have seen that already they have bought the shares. Okay, Ji. This kind of study can even help you in the small caps. Okay, right? You are Ji. buying, mutual fund companies are buying, companies debt-free. We can play this type of risk. Okay. Right? Okay. And can have good money. See, right now also we are holding this company. Okay. Right? Ji. No need to sell. Now it's in correction mode. We can add some. Okay? Okay, Ji. Sure. Okay. So during the IPO, we can come to a conclusion whether the big fishes are doing any activities, major activities. We can go it for. Yeah. And then you can track in the same way, which we have seen right now. Right? Yes, Ji. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much, Velmuruganji. Thank you. Now Ji. I will like to arrive to Karan Rajji. You can unmute yourself. Before should I have to close me? Yes, I have already closed your presentation. Okay. Yeah. Thank you, Ji. Thank you. Okay, Karan Rajji, can you unmute yourself? Okay. Yes. Sanjay bhai, you can unmute yourself. Yes, Sanjay bhai, I will move towards your companies. Sanjay bhai, yes. Yes, Sanjay bhai. Sanjay bhai Adnani or Sanjay Desai?
Anybody from you can unmute yourself. Piyush ji, Sanjay Adnani. Yes, Sanjay Adnani ji. Fine, everything? Yeah, everything fine. Okay. Can I make you presenter? नहीं, यहाँ में Mac पर मेरा नहीं चलता है. For some reason, I am not able to present. Last time Okay, also no problem. I had. Right, no problem. What I will do, I will open the chart of this UBL here. Yeah. Right? Yeah. Okay, this is UBL. Can you explain me the movement or behavior of UBL? इसमें पीयूष भाई सीधा है कि ये ग्रोइंग कंपनी है एंड क्लियरली इधर दिखता है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसका. बीच में थोड़े बहुत ड्रॉप्स आते हैं मगर वो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ एक्साइज वगैरह के वजह से. अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ ग्रोइंग कंपनी एंड क्लियर ट्रेंड इधर है इसका. राइट. और ग्रोथ वो बीच में ड्रॉप आएंगे नहीं तो हम लेंगे कब? ड्रॉप आएंगे तभी तो लेंगे. देखो ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, हाई वॉल्यूम, फिर रैली किया. कितनी बार इसने मौके दिए. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छी कंपनी लेने नहीं मिलती है. कैसे ऐसा हो सकता है? मेरे को एक कंपनी बताओ जो आराम नहीं करती है. यूबीएल में काफी मौके, इसमें बहुत मौके मिले हैं. लोगों ने अगर ध्यान दिया हो इस पर तो काफी मौके मिले. अभी भी मौका है. अब कुछ अभी भी मौका है. दो महीने पहले तक बहुत मौका था. अभी काफी कम हो गया था, 800 के आसपास. करेक्ट, 100 में आ गया था ये. तो ये नीचे से बाइंग क्यों आ जाता है? क्योंकि लोगों को इसके वैल्यूएशंस पता होंगे. जो लोगों ने इसका स्टडी किया होता है उनको पता है कि यूबीएल लोअर लेवल पे सस्ता है, तो ऐसी जगह से बाउंस आ जाते हैं. राइट. फिर जहां जाके फियर आएगा कि ये जगह पे महंगा है, वहां से सेलिंग प्रेशर आता है. इसी प्रकार से ये रेंज बनती है. राइट. ओके, सो गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय यूबीएल. मेरे ख्याल से लेना है तो ये पूरी रेंज में हमें लेना चाहिए. मैं इसकी एक कंपटीटर कंपनी और एक जो है मैं उसे चार्ट में यहाँ पे डालता हूं. एसोसिएटेड अल्कोहल और यूबीएल. एसोसिएटेड अल्कोहल का चार्ट आपके सामने है. Can we see this chart? Yeah. It is very clear that there is any chart which has so much of movement. You have to carefully then look into it. What is wrong? What is right? There is too much movement in this chart. तो consistency नहीं है. देखिए अभी काफी हो नीचे ऊपर हो रहा है. मौका मिला गिरने का तो ये मेरे ख्याल से मोर देन 60% करेक्ट हो गया. 422 टू 100 आ गया है ना. जी. इसी से पता चलता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. राइट. इसके अलावा आपके पास और एक कंपनी था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज. राइट, फ्रॉम प्लास्टिक. ये सुप्रीम इंडस्ट्री. कहिए सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट आपको क्या कहता है? ये क्लियर पैटर्न है इसका ग्रोथ का, वेरी क्लियर. तो इसमें अपने को मौके बहुत मिल रहे हैं अगेन लाइक यूवीएल. तो जहां जहां मौका मिले वी शुड एक्यूमुलेट. करेक्ट. इसका और एक कंपनी है और वो भी अच्छा है. तो नाम भूल गया मैं. अहमदाबाद का कंपनी. अरे राजेंद्र भाई, ये कौन सा कंपनी है इसका कॉम्पिटिटर अहमदाबाद का अपना? कौन सा पाइप? ये भी धमाल पिक्चर में अनिल कपूर में आके हाथ में उसका पाइप था. बहुत ऐड किया उन लोगों ने. अस्ट्रल पाइप सर. सॉरी यार, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ. बहुत ऐड किया उन्होंने उसमें. एस्ट्रल पाइप. हम 3 कंपनी देखते हैं. एक यहाँ पे हमने एस्ट्रल पाइप देखा, डेप फ्री कंपनी. हाँ बिल्कुल.
अरे आधा चार्ट है इसका। अच्छा आईपीओ ही 2008 में था। कैसा लग रहा है आपको चार्ट देख के संजय भाई? ये भी सही दिख रही है, ग्रोथ, क्लियर ग्रोथ है इसमें भी, और मौके मिल रहे हैं अभी। यस यस, हाई ग्रोथ, डेप फ्री, बढ़िया रैली, आराम रैली, और अभी क्या चल रहा है? मौका है। या हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये कुछ ऐसे चलती ही जाए। ये पूरा मौका, भगवान करे 2 साल और ना चले तो ये 2 साल में भी हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? क्योंकि आराम के बाद रैली, जो इसकी पुरानी आदत है, आराम के बाद रैली। और जब भी रैली आती है, ये कितना रैली करती है? 400 से 1300, मतलब करीबन 3-4 गुना तो ये हर बार रैली करती ही है। रैली करती है, ट्रू। सो गुड वन। इसका और एक कंपनी है, हम उससे इसको कंपेयर करेंगे और बताइए मुझे। सॉरी, ये आधा चार्ट है। आधा चार्ट तो बहुत टीप चलती है इसकी भी बाजार में। मेरे को बताओ सब में अच्छा क्या है? सुप्रीम, एस्ट्रल की किंगफा, क्या लेना चाहिए? सुप्रीम और एस्ट्रल लेना चाहिए। ये तो क्लियर दिखता है। वो चार्ट में ये एक फायदा है कि वो विजुअली यू कैन मेक आउट विद वन लुक व्हाट इज गुड। वो आपको अंदर जाने की, ज्यादा फंडामेंटल करने की जरूरत ही नहीं है। सामने ही यू कैन, वन लुक यू कैन सी दैट यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए, इसने ब्रेकआउट संजय भाई दिया 2014 में, जबकि सुप्रीम, एस्ट्रल ये 2008 से ब्रेकआउट दिया हुआ उन लोगों ने। वो पहले ब्रेकआउट दिया, वो चले बढ़िया। जिन्होंने लेट ब्रेकआउट दिया, वो टूट के वापस अपने भाव पे आ जाते हैं, है ना? अब आप कह सकते हो कि पीयूष भाई 100 से ये तो 1300 गया था, कितना बढ़िया रैली किया इसने। पर वो इसने रैली नहीं किया है, इसका सेक्टर चल रहा था। लेट ब्रेकआउट तो मार पड़ेगी तो वापस हम पुराने भाव पे आ जाते हैं। देखो 1400 से 300 तो कितना भयंकर टूटा, राइट? अब आपके पास दो रास्ते हैं संजय भाई। आप 344 पे किंगफाई को लेना चाहिए, गुड कंपनी, 350 पे लेंगे हम, वापस इसको 1300 पे देखेंगे। लेकिन किंगफा ले, इससे तो हम एस्ट्रल क्यों ना ले? ट्रू, बराबर की नहीं? वेल्थ क्रिएशन के, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर देन वी हैव टू कंसीडर द सॉलिड कंपनीज। वो आपको ट्रेडिंग डेली की करनी है तो देन यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीस अप्स एंड डाउन्स। वो तो नहीं करनी है अपने को। सही बात है। और ये ट्रेडिंग में भी देखो, ये 400 से चल चल के इधर चलेगा, यहाँ पे इतने लोग फंसे होंगे ना कि वापस सेलिंग आ जाए, वापस आ जाएगी। वो जो आपके शेयर है वो मल्टी ईयर रैली करते जाएंगे, राइट? डिविडेंड अच्छा मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, तो ये सबसे दूर रहो। जो बढ़िया है उसी में रहे, राइट? अब आपको लग सकता है मैंने 400 पे नहीं लिया, ये 900 आ गया, पर फिर भी नहीं लेने का, क्योंकि लेने के लिए और बहुत सी अच्छी चीजें हैं, करेक्ट? ट्रू। सो इट शुड बी एज सिंपल एज वी कैन मेक इट। नहीं तो सब चीज अच्छी लगेगी, लोग इसी में फंसते हैं। एब्सोल्युटली है। ओके, सो थैंक यू संजय भाई। हम नेक्स्ट 2 वीक्स में हम कुछ और चीजें देखेंगे। अब तक आपने खाली बिहेवियर देखा है। नाउ व्हाट वी विल फाइंड आउट, ये टूटते हैं तो कितना टूटेंगे, चलते हैं तो कितना चलेंगे, ये सारी चीजें हम अब थोड़ी आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चलते कैसे हैं, बिहेवियर स्टडी, राइट? सो आज हमने कई शेयर्स के बिहेवियर पढ़ने के प्रयास किए। हम नेक्स्ट 2 वीक्स बाइंग लेवल्स पे और देखेंगे, कहां पे और इसको प्रिसाइजली बाय करना चाहिए, इनके टारगेट क्या होने चाहिए, ये सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, और फिर हम उसका भी क्वेरी सेशन रखेंगे, क्योंकि उसमें और प्रिसाइज हो जाएगा आपका सारी चीजें। डन? तो यहाँ पे मैं और ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हुए, अच्छा करण राज जी आपको कुछ बोलना है ना? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Yes, Karan Raj ji. I have seen your message. Sir, mic is not working. Okay, no problem. कोई बात नहीं। और कोई किसी को क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी बता सकते हैं।
राजेंद्र भाई अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस राजेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. That's a very short question. It is not regarding that technical analysis. Sir, Okay, मैंने आपको okay, पूछा no था कि which is what is the best information source to know about a company? Would the annual reports be sufficient, or should I go to the company website if I want to know more about the company? Right, right. See, generally data gives you information, right? अब Yes. डेटा हाँ. आपको बीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट में से भी मिलते हैं, पर एनुअल रिपोर्ट में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? Yes. Yes. सबसे बढ़िया चीज है एनुअल रिपोर्ट, इवन बेटर हाँ, देन हाँ. बीएससी इंडिया, Okay. Yes, sir. जैसे हाँ. मैं अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा बना रहा था, कल मैंने आपको लोगों को शेयर किया ना। Yes. Yes. हाँ. तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई कंपनी का डेटा बनाता हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉर देयर एनुअल रिपोर्ट। आई स्टडीड रिपोर्ट ऑफ वोल्टास, हाँ, हाँ, हाँ. राइट? और वोल्टास के रिपोर्ट में से मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हाँ, हाँ. कोई भी एनुअल रिपोर्ट इज योर बेस्ट सोर्स टू अपग्रेड योरसेल्फ। इससे Sir, you are अच्छी चीज और virtually. कोई जगह नहीं। Sir, you are. Thank you very much, sir. You are having information virtually about every company and every नहीं industry. ऐसा I'm बिल्कुल really नहीं है I am really impressed. Virtually. I राजेंद्र mean, भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर क्या है पता है कि मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, हाँ, हाँ, राइट? हाँ. तो मैं तो देखो Yes, yes. कभी टीवी ही नहीं देखता हूँ। मैं जहां मेरी ऑफिस में बैठता हूँ वहां तो टीवी ही नहीं है, हाँ. तो Yes, मेरे को yes. कभी भी कोई लेटेस्ट न्यूज तो पता ही नहीं होते। ये वो चल रहा है, ये डायरेक्टर ने आके वो बोला, वो प्रमोटर ने ये कहा, कुछ भी नहीं पता होता है मेरे को। पर मैं दो चीज अपडेट करता हूँ। गूगल न्यूज Yes. एक मेरे पास है, गूगल न्यूज में मैं हाँ. कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेता हूँ, राइट? जो Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, हाँ. न्यूज भी मिल गए, लेटेस्ट हैपनिंग हाँ. पता चल गई, फिर हाँ. पूरा दिन कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है, Sir. बराबर? हाँ. हाँ, हाँ. तो रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ योर कंपनी, सही में बहुत Yes. गाइडेंस मिलेगा वहां से। Yes. ओके Thank you very much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, तो मिलेंगे वापस, और Yes, कुछ sir. क्वेरी हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ। यू हैव रिटन आशीष योर क्वेरी। ओके, लेट मी चेक वेयर इज योर क्वेरी। अच्छा, करण राज जी ने भी क्वेरी लिखी है ना, चलो दोनों चीज देख लेते हैं। आशीष प्रजापति, सर एज पर लॉन्ग टर्म गोल पर्सपेक्टिव, हाउ वी कैन डाइवर्ट अवर पोर्टफोलियो टू म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी, एट व्हाट परसेंटेज लेवल वेटेज बिटवीन बोथ? आशीष अनम्यूट करके पूछ लो ना ये क्वेरी, थोड़ी मेरे को क्लियरिटी नहीं हुई है। हेलो हाँ आशीष बोलो। सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि अपन को अगर म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट इक्विटी में अगर डाइवर्सिफिकेशन करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो फिर मेरे को म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट इक्विटी में कितने कितने इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा एज पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? ओके ओके, गुड क्वेश्चन आशीष। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को पहले नहीं पता चलता था शेयर बाजार, राइट? मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने दोनों में पैसा डाला था, इक्विटी में भी था, म्यूचुअल फंड में भी था। पर मेरे को अभी 10 साल में बिहेवियर पता चल गया कि म्यूचुअल फंड भी टूटते हैं तो आधे हो जाते हैं, शेयर भी आधे होते हैं, जब चलते हैं तो भी दोनों चीजें चलती है। अब अगर मैं शेयर में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं तो फिर मुझे कोई म्यूचुअल फंड की जरूर नहीं है और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी माय पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड, राइट? अब म्यूचुअल फंड में डालूंगा वो भी यही कंपनियां लेने वाले, राइट? तो मैं क्यों कोई और जगह पे जाऊं जब मैं डायरेक्ट निवेश कर सकता हूं? मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं कोई एक पैसा भी म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, जीरो रीजन। मैं लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करता हूं, लिक्विड फंड जो डेब्ट फंड होते हैं ना, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, बराबर है? पर जो पिछले एक साल में जो धोखे खाए हैं डेब्ट फंड में भी, तो मैं अभी मेरा डेब्ट फंड भी डायरेक्ट खुद में डालता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ कि चलो कौन सी एफडी ली जाए, बराबर ना? बहुत सी बार हमें अच्छी स्कीम्स मिलती है। देखो कुछ स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी चलती है, कभी कभी हम देखते हैं कि उनका ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता है। म्यूचुअल फंड्स के पास कई स्कीम्स होती है, थीमेटिक स्कीम्स होती है,
कुछ स्कीम नहीं चलती है, कुछ स्कीम चलती है, बराबर है। कभी भी ये मत सोचो, बहुत से लोग ये देखते हैं कि कौन सा स्कीम चल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करो। अरे वो थीमेटिक स्कीम है। थीम का मतलब क्या हुआ, हर म्यूचुअल फंड कंपनी ने 10 थीम बनाई, फार्मा, ऑटो, एमएनसी, बहुत सी कर दी। अब अभी मान लो ऑटो नहीं चल रहा है और फार्मा चल रहा है, तो हमेशा फार्मा के म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, राइट। पर इससे तो हमको धोखा होगा ना। जो नहीं चल रहा है वो दिखता नहीं और जो चल रहा है वो दिखता है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप रिसर्च कर रहे हो, आप डायरेक्टली इक्विटी में पूरा निवेश कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। देखो रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है, तो रिस्क तो इधर भी है, बराबर है। यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, करण राज जी, sir, in some companies there is vast difference in intrinsic price as per fundamental and technical chart. Please explain. Please write down the company name, करण राज जी। है ना, आपका माइक बंद है पर आप प्लीज लिख दो कौन सी कंपनी में ऐसा है। पीवीआर। ओके करण राज जी, सी इंट्रिंसिक वैल्यू और चार्ट दोनों में डिफरेंस नहीं होगा करण राज जी, बोथ आर मूविंग पैरेलली। पर अगर आप पीवीआर के पुराने रिजल्ट देख के अगर आप इस साल ग्रोथ एक्सपेक्ट करना डालोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप ढूंढते हो, तब अगर आपने ग्रोथ डाला कि भी 20% से बढ़ेगा तो आपके वैल्यूएशन हाई आएंगे। आपको अभी से पता होना चाहिए करण राज जी कि पीवीआर बंद है, तो इस बार तो धंधे इनके कम से कम 15-20% तो साल के टूटेंगे। अगर धंधे 15-20% टूटेंगे तो प्रॉफिट तो इस बार आधे के आधे आने वाले हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो, आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, राइट। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, फाइनेंस कंपनीज, जो भी चीजें ज्यादा टूटी है उनके पीछे कारण ही यह है कि इस साल के उनके प्रॉफिट टूटने वाले। तो हमेशा एस्टिमेट आपको क्या देना चाहिए, फॉरवर्ड अर्निंग का एस्टिमेट लेना है। आप पीवीआर में पॉजिटिव फॉरवर्ड अर्निंग डालोगे तो नहीं चलेगा, नेगेटिव अर्निंग ही डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, बराबर ना, राइट करण राज जी। अभी एस्टिमेट करो कि इतना मैं सोचता हूं कि बुरा आएगा। Q1 के रिजल्ट आएंगे तो और पता चलेगा आपको कैसे रिजल्ट है, बराबर। ओके, सो लेट मी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। हमने फंडामेंटल सी फॉर टुवर्ड्स फंडामेंटल वी हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड यू ऑल आर नाउ गुड इन फंडामेंटल्स। आपसे गलती हो ही नहीं सकती है आइडेंटिफिकेशन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन है कोई भी सेक्टर में। आपसे गलती कहां होगी वो मैं बता देता हूं। ग्रोइंग सेक्टर ढूंढने में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। किसके धंधे बढ़ रहे हैं वो ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब आप बाइफरकेट कर रहे हो कोई भी सेक्टर, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि खराब कंपनियां आपने ले ली। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आपने चार्ट्स कंबाइन किए, देखो और क्लियरिटी हो गई। अब चार्ट और फंडामेंटल दोनों का संगम वेल्थ क्रिएशन ही वेल्थ क्रिएशन, राइट। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखने वाले हैं कैसे हम प्रॉपरली और बाइंग लेवल हमारे ढूंढे, कैसे हम फिक्स हमारे टारगेट करें कि ये शेयर चल चल के कितना चलेगा, राइट। तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीक के लिए, बराबर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, है ना। गुड बाय, थैंक यू।